Everyone, welcome back to the lecture of pharmacology by MKD. Yeah, that's me, Dr. Mangesh Kumar Tripathi. So class, in the last lecture we have started with the drugs affecting the blood flow. Okay, now in that we have already completed the first class of drug which affects the blood flow, and that is thrombolytic drug or fibrinolytic drug. Correct? Okay, now in today's lecture we will be starting with the second drug which acts on the blood flow, and that is the antiplatelet drug. ठीक है. Now in drugs affecting blood flow we will be studying three lectures or the three drugs which are affecting the blood flow. पहला is the thrombolytic drug, second guys is the antiplatelet drug, and third is the anticoagulant drug. ठीक है. So guys, we have already completed the thrombolytic. एक बार हम लोग क्विक रिवाइज कर लेते हैं. thrombolytic करते क्या है? What do they do? They lyse or they degrade the thrombus or the clot. ठीक है, which will release what? The fibrin particles. So when the thrombolytic drug is given, it will lyse or thrombolyze or degrade the clot, which will release the fibrin. ठीक है. Now how we will estimate कि भाई thrombolytic drug का कितना पावर है जब हम लोग देते हैं. So how will we estimate? So the thrombolytic effect is estimated by what happens when it releases the fibrin. The smaller particle of the fibrin, they are called as the D dimer. ठीक है. तो जितना ज्यादा D dimer concentration blood में रहेगा means उतना ज्यादा we have the effect of thrombolytic drug. उतना ज्यादा उसका इफेक्ट हो रहा है, मतलब उसकी आगे जो भी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है अगर ज्यादा ही डी डाइमर का कॉन्सेंट्रेशन आया तो. ठीक. सेकेंड इज एंटीप्लेटलेट, जो हम लोग आज क्लास करेंगे. एंड एंटीप्लेटलेट्स आर व्हाट, नाम में ही मीनिंग है दैट दे विल प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट रिच थ्रोम्बस. सो प्लेटलेट एक जगह आ जाएंगे, सो दे विल फॉर्म अ थ्रोम्बस. सो उसको प्रिवेंट करने के लिए वी विल गिव antiplatelet drug. So भाई how to estimate the effectiveness of antiplatelet? भाई antiplatelet कर क्या रहे हैं? They are preventing the aggregation of platelet, means they can cause bleeding if it is given more in the concentration. ठीक है. So it is estimated by bleeding time. ठीक है. So high BT means high bleeding time. What it suggests that there is excessive antiplatelet drug in the body, so it is antiplatelet toxicity. And the last जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपने देखेंगे इज एंटीकोगुलेंट. नाम में ही मीनिंग है, मींस दे आर अगेंस्ट द कोगुलेशन, सो दे विल प्रिवेंट द फाइब्रिन रिच थ्रोम्बस. सो फाइब्रिन ही है जो प्लेटलेट को एग्रीगेट करवा के थ्रोम्बस फॉर्म करेगा, सो उसी को वो प्रिवेंट करेंगे. सो मींस they are preventing the formation of a clot. So we can estimate your anticoagulant activity by measuring the clotting time. Now clotting time, उसमें भी दो टाइम डिवाइडेड है. We have prothrombin time and we have APTT. APTT का फुल फॉर्म है activated guys. A is activated partial thromboplastin time. So clotting time दो पार्ट में डिवाइडेड है, PT and APTT. ठीक है. सो ये हमें बेसिक समझ गया. नाउ इन आउट ऑफ दिस थ्री, दिस इज ऑलरेडी कंप्लीटेड. सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद एंटीप्लेटलेट ड्रग. ओके, ठीक है. नाउ बिफोर स्टार्टिंग एंटीप्लेटलेट ड्रग गाइस, एंटीप्लेटलेट का मीनिंग क्या है? इट इज द ड्रग विच इज प्रिवेंटिंग द एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स. तो अब हमें अगर समझना है एंटीप्लेटलेट ड्रग, तो वी शुड अंडरस्टैंड कि प्लेटलेट एग्रीगेट कैसे होता है. सो आवर नेक्स्ट सब हेडिंग इज normal physiology of platelet aggregation, how the function of platelet occurs, how they aggregate. Okay, ठीक. Okay, so we understood what is antiplatelet drug. Definition देख लिया, कैसे estimate करते हैं, कैसे monitoring करते हैं by measuring the bleeding time. ठीक है. अभी हमने बोला था कि we should understand how the physiology of platelet works, means how the platelet aggregation occurs. So this is a normal physiology flow chart which I have drawn. ठीक है. So we'll start with how the platelet aggregates. ठीक है. Now everyone knows platelet is a component of blood. So this is for example blood. ठीक है. So the whole thing is blood. Now the blood contains the platelets. So this cells you can see, they all are platelet. So P stands for platelets. There are short forms written. R for receptor, जहां पे आपको R दिखेगा, and GP is the glycoprotein. ठीक है. These are the abbreviation you should know. Now the platelet of the blood, it contains the enzyme called COX-1, that is cyclooxygenase 1. ठीक है. Now the COX-1 forms thromboxane A2.
ठीक, it forms thromboxane A2. Now what happens, this thromboxane A2 which is formed, it attaches the platelet to endothelium of blood vessel. या मैंने फ्लो चार्ट में भी लिखा है, the platelet contains COX-1 enzyme guys, so it forms thromboxane A2 which, that is thromboxane A2 which attaches the platelet. देखो platelet कहाँ अटैच हो रहा है, endothelium of blood vessel पे, so it attaches the platelet to the endothelium of blood vessel. ठीक है, so the पहला स्टेप अगर हम देखें एग्रीगेशन का प्लेटलेट का is attachment of platelet to the endothelium of blood vessel. ठीक है, ओके अब क्या होगा इसके बाद, अब ये जो अटैच प्लेटलेट है गाइस, अब इसका क्या होने वाला है, नाउ इट रिलीजेस two chemicals. The first chemical is called ADP and the second is called guys cyclic AMP. ठीक है, now ADP क्या करता है guys, ADP increases more recruitment. देखो हमें एग्रीगेशन करना है, सो प्लेटलेट एक बार अटैच हो गए हमारे एंडोथीलियम में, तो हमें और प्लेटलेट चाहिए ताकि वो एग्रीगेट हो सके. सो दिस एडीपी कॉसेस मोर रिक्रूटमेंट ऑफ प्लेटलेट, और नए प्लेटलेट का रिक्रूटमेंट फॉर्मेशन करेगा. कैसे करेगा, यहां देखो मैंने लिखा है एडीपी कॉसेस रिक्रूटमेंट ऑफ मोर प्लेटलेट बाय, वापस एक रिसेप्टर, देखो एंडोथीलियम में प्लेटलेट बैठे हुए हैं, अब उन पे एक रिसेप्टर होता है P2Y12 रिसेप्टर. सो P2Y12 रिसेप्टर को इट एक्टिवेट्स एंड इट फॉर्म्स रिक्रूटमेंट ऑफ मोर प्लेटलेट. ठीक, ओके, नाउ व्हाइल द साइक्लिक एएमपी इट विल कॉज डिक्रीज प्लेटलेट रिक्रूटमेंट. वो अपोजिट काम करेगा, इट विल नॉट कॉज इंक्रीज रिक्रूटमेंट, इट कॉजेस डिक्रीज रिक्रूटमेंट ऑफ प्लेटलेट, इट डिक्रीजेस द रिक्रूटमेंट ऑफ प्लेटलेट. अंडरस्टूड. अब हमारा एडीपी उसने क्या कर दिया, प्लेटलेट एग्रीगेट मतलब रिक्रूटमेंट कर लिया. अब ये जो रिक्रूटेड प्लेटलेट है, अब उसको क्या होना है, एग्रीगेट होना है. सो योर मोर प्लेटलेट, ये एक प्लेटलेट है, ये दूसरे हैं बहुत सारे प्लेटलेट. नाउ दिस प्लेटलेट कंटेन्स अ रिसेप्टर कॉल्ड GP2B3A, दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A. ठीक है, सो इट कंटेन्स GP2B3A. ठीक है, अब एक प्लेटलेट, दूसरा प्लेटलेट, तीसरा, चौथा, सबके पास GP2B3A है. अब उनको एक दूसरे के साथ नजदीक आना है. सो लाइक फॉर एग्जाम्पल प्लेटलेट दे आर एक्टिंग लाइक अ ईटा ब्रिक्स. सो दो ईटे को हम लोग ऐसे जोड़ेंगे बाय फेविक्विक, फेविकोल. सो द फेविकोल इज व्हाट, द थ्रोम्बस मटेरियल, एंड दैट इज द फाइब्रिन. सो दिस इज द फाइब्रिन. सो योर फाइब्रिन अटैचेस वन प्लेटलेट टू द another. उसके वजह से क्या होगा, there is formation of clot. So we have the platelet aggregation which leads to the formation of thrombus. Understood? So अगर हम लोग platelet aggregation में steps देखें तो हमारे मेन 3 स्टेप है. पहला गाइस, पहला is attachment of platelet to the endothelium of blood vessel. Second step is recruitment of more platelet with the help of P2Y12 receptor, and third is the attachment of one platelet to the another with the help of fibrin, which causes aggregation. So this is first step, attachment. Second step, platelet recruitment. Third step, platelet aggregation. ठीक है, so यहां पे भी आप लिख सकते हैं. So platelet attachment, यहां हो चुका है अटैच प्लेटलेट टू एंडोथेलियम. सेकेंड स्टेप इज मोर ऑफ रिक्रूटमेंट, सो प्लेटलेट रिक्रूटमेंट. एंड थर्ड गाइस क्या है, आप देख सकते हो, एग्रीगेशन. सो ये हमारे 3 स्टेप हैं प्लेटलेट के फंक्शन के, हाउ इट एग्रीगेट्स इन द बॉडी. ठीक है, अंडरस्टूड. ओके, अब हम लोग जो ड्रग्स देखेंगे गाइस ना, एंटी प्लेटलेट हमारा मेन टॉपिक है. सो एंटी प्लेटलेट मतलब प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करेंगे, मतलब अटैचमेंट को भी इनहिबिट करेगा. कोई ड्रग रिक्रूटमेंट को इनहिबिट करेगा, कोई ड्रग एग्रीगेशन को. अब हम लोग यहां देख सकते हैं कौन कौन से ड्रग है. फॉर एग्जाम्पल अब ध्यान से देखो, अब प्लेटलेट के अंदर कौन है, COX-1. COX-1 से क्या फॉर्म हो रहा है, थ्रोम्बोक्सेन A2. तो पहला स्टेप, आई कैन इनहिबिट COX-1. So COX-1 inhibitors I can give, correct? So first step is, or the first antiplatelet drug is COX-1 inhibitor. This symbol I am writing for inhibitor. Now second step guys क्या है, platelet recruitment हो रहा है with the help of ADP which is activating the P2Y12 receptor. So अगर मैंने इनका ब्लॉकर दे दिया, ADP ब्लॉकर या P2Y12 रिसेप्टर ब्लॉकर, so क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, रिक्रूटमेंट नहीं होगा. तो सेकेंड स्टेप इज जस्ट ब्लॉक दिस. ठीक है, सो अगर हमने ब्लॉक कर दिया तो दैट इज द सेकेंड स्टेप. तो सेकेंड ड्रग
First is COX-1 inhibitor guys, second is ADP और P2Y12 blocker, करेक्ट? ठीक है, अंडरस्टूड। अब थर्ड स्टेप का क्या है गाइस? ओके, वन मोर थिंग, साइक्लिक एएमपी गाइस क्या कर रहा है? इट इज डिक्रीजिंग दी प्लेटलेट रिक्रूटमेंट, सो वो खुद ही कर रहा है, करेक्ट? प्लेटलेट का रिक्रूटमेंट कम कर रहा है, हमको जो चाहिए, मतलब हमको साइक्लिक एएमपी क्या चाहिए? ज्यादा की कम? ज्यादा। यस, वेरी गुड। अब यू नो गाइस, फ्रॉम ब्रोंकियल एस्थमाटोग्राफी हमने देखा था साइक्लिक एएमपी इज मेटाबोलाइज्ड बाय विच एंजाइम? फॉस्फोडाइस्टरेज। कौन सा एंजाइम से मेटाबोलाइज होता है? फॉस्फोडाइस्टरेज। बट इन ब्लड इट इज मेटाबोलाइज्ड इन अस्थमा, इन ब्रोंकियल स्मूथ मसल इट वाज मेटाबोलाइज्ड बाय PDE4, बट इन ब्लड योर साइक्लिक एएमपी इज मेटाबोलाइज्ड बाय PDE3। तो अगर साइक्लिक एएमपी मेटाबोलाइज हो गया, सो साइक्लिक एएमपी बचेगा क्या? नहीं। तो हमको क्या करना है? साइक्लिक एएमपी हमको क्या चाहिए? मोर। सो वी नीड more of cyclic AMP. So what I will do? I will inhibit what? PDE3. So I have to inhibit this step. So what I will give? Yes, I will give PDE3 blockers or antagonists. So हम लोग देंगे phosphodiesterase 3 inhibitor. तो ये हमारा थर्ड क्लास हो गया। अब लास्ट स्टेप क्या है गाइस? एग्रीगेशन। रिक्रूटमेंट हो गया, अब एग्रीगेशन किसके वजह से हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ दिस रिसेप्टर। सो मैंने क्या कर दिया? इस रिसेप्टर का ही क्या दे दिया? एंटागोनिस्ट। सो आई विल एंटागोनाइज दिस रिसेप्टर। सो दिस इज द फोर्थ। सो फोर्थ इज GP2B3A, रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, okay, now one more thing guys, there are after this 1 2 3 4 drug there are some miscellaneous drug जो कहां काम करते हैं? देखो guys, COX-1 inhibitor तो ठीक है, क्या फॉर्म कर रहा है वो? thromboxane A2. Now this thromboxane A2 is formed with the help of thromboxane synthase inhibitor. Thromboxane synthase। अब मैंने क्या कर दिया? अगर thromboxane A2 फॉर्म ही नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? अटैचमेंट। सो आई विल गिव thromboxane synthase inhibitor। सो ये हमारा फिफ्थ क्लास ऑफ ड्रग हो गया। हम लोग अगर देखना चाहें, सो दिस इज द फिफ्थ क्लास ऑफ ड्रग, दैट इज thromboxane synthase inhibitor। ठीक, ओके। नाउ वन मोर थिंग, मैं आपको यही बता दे रहा हूं ना गाइस, प्लेटलेट लास्ट स्टेप जो एग्रीगेशन होता है, प्लेटलेट में देयर इज अ रिसेप्टर कॉल्ड पार रिसेप्टर। पार। नाउ पार का फुल फॉर्म यहां हम लिख देते हैं, पार इज प्रोटीएस एक्टिवेटिंग रिसेप्टर। क्या है गाइस? प्रोटीएस एक्टिवेटिंग रिसेप्टर। सो गाइस ये रिसेप्टर जब एक्टिवेट किसको करेगा? इट एक्टिवेट्स द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन क्या है? विच help the fibrin along with this receptor that is GP2B3A, ताकि एक साथ हमारे क्या आ जाए? दो प्लेटलेट अटैच हो जाए। So platelet also contain PAR receptor which activates what? Thrombin. So PAR receptor activate thrombin and thrombin with the help of fibrin. ठीक है, and the receptor that is GP2B3A it will aggregate one platelet to the another, जिसके से एग्रीगेशन होगा। तो अब मुझे क्या करना है? एग्रीगेशन को हटाना है। सो आई विल गिव थ्रोम्बिन इनहिबिटर और कैन से पार इनहिबिटर। सो पार inhibitor. So this is the sixth drug guys. समझ गया? So we have mainly 6 drug which are called as anti-platelet drugs. हम लोग अब एक एक करके पूरा नाम फिर से लिख लेते हैं and we'll see one by one. Okay? ठीक। So anti-platelet drug हमने क्या क्या देखा guys? COX-1 inhibitor. Second is, अगर हम प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल वाइज जाएंगे तो सेकेंड स्टेप वाज व्हाट गाइस? इट वाज thromboxane A2 सिंथेस इनहिबिटर, बट वो हम लोग लास्ट में देखेंगे बिकॉज इट इज अ स्मॉल ड्रग। सेकेंड यहां पे हम आ जाते हैं, इट इज ADP और P2Y12 ब्लॉकर। थर्ड ड्रग इज phosphodiesterase 3 inhibitor। So PD3 inhibitors guys, and fourth is GP2B3A blocker or inhibitors, and fifth or sixth is
thromboxane A2 synthase inhibitor, and we have protease activating receptor inhibitor, PAR inhibitor, correct? सो हमारे ये मेन 6 ड्रग हैं, दोज आर कॉल्ड एंटी प्लेटलेट, जो प्लेटलेट को एग्रीगेट होने से इनिबिट करे और उसके वजह से बहुत सारे डिसीज में दे आर यूज्ड, ठीक है? ओके, अब COX-1 इनिबिटर गाइस, अगर हम देखें ऐसा कौन सा ड्रग है जो कॉक्स को, अगर हमने एनसेड देखा था, इरिवर्सिबली इनिबिट कर देगा, एंड दैट इज एस्पिरिन. सो इट इज इरिवर्सिबल कॉक्स इनिबिटर. अगर हम स्पेसिफिकली क्लास में आए, इट इज इरिवर्सिबल COX-1 inhibitor. So this is the first drug, ठीक, that is aspirin. So ये हमारे टोटल 6 ड्रग हैं. अब हम लोग एक एक करके we will see the antiplatelet drug. Okay, the first is the irreversible COX-1 inhibitor. Okay. So guys, irreversible COX-1 inhibitor is aspirin. You know it is why irreversible, because एक बार एस्पिरिन ने COX-1 को इनहिबिट कर दिया, सो जब तक नया फॉर्मेशन नहीं होगा COX-1 का, तब तक वो डेथ हो गया उस COX-1 का, ठीक है? जब तक नया सेल नहीं फॉर्म हुआ, नया COX-1 नहीं आया, तब तक इट इज डेड, ठीक है? सो हाउ इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्पिरिन? So you should know the mechanism of action of aspirin. Now how it acts, guys? It inhibits COX-1 in platelet, thereby there is decreased formation of thromboxane A2, ठीक है? thereby TXA2 is thromboxane A2, thereby attachment of platelet to endothelium is inhibited. सो अटैच ही नहीं हो पाएगा, अंडरस्टूड? सो हमारा एस्पिरिन क्या कर रहा है? इट इनहिबिट्स द COX-1, देयरबाय थ्रोम्बोक्सिन A2 ही नहीं फॉर्म होगा, और अगर थ्रोम्बोक्सिन ही नहीं है, सो अटैचमेंट ऑफ प्लेटलेट टू एंडोथेलियम इज नॉट पॉसिबल. सो गाइस, एस्पिरिन, सिंस व्हाट इट इज डूइंग, इट इज blocking the COX-1 irreversibly, hence aspirin is also called suicide inhibitor. Once it has blocked by उसका death, ठीक है? also called as, it is also called hit and run drug. Now what is, guys, hit and run drug? Please remember the definition. Hit and run drugs, they are the drugs which has short half life, ठीक है? they will inhibit that enzyme irreversibly. They have short half life, they will inhibit the enzyme irreversibly, ठीक है? शॉर्ट हाफ लाइफ है, मतलब वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहेंगे बॉडी में, बट दे विल हैव लॉन्ग लास्टिंग एक्शन. सो कुछ लोग अपने जीवन में शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, बट दे विल हैव अ इंपैक्टफुल एक्शन आफ्टर, still they are gone, they have the impactful action on you, and that is called hit and run drug. तो ऐसा ही है हमारा एस्पिरिन. ना उसके अलावा ऐसे कौन से हमारे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, अभी 1-2 ड्रग और आएंगे जो हिट एंड रन ड्रग में आते हैं. वाई? बिकॉज दे आर इरिवर्सिबल इनहिबिटर. तो वो और कौन से ड्रग हैं? सो टू रिमेंबर हिट एंड रन ड्रग, जस्ट रिमेंबर द निमोनिक CAMP, CAMP. Now C stands for clopidogrel. अभी हम लोग देखेंगे गाइस, एंटी प्लेटलेट ही है ये भी. A stands for aspirin. This is very important. M stands for MAO inhibitor. It's an enzyme monoamino oxidase. MAO inhibitor ये हम पढ़ेंगे. ANS में आपने पढ़ा होगा MAO inhibitor like salicylic. ये हम CNS में भी पढ़ेंगे, don't worry, ठीक है? And P stands for penicillin. Also P stands for prasugrel, proton pump inhibitor, ठीक है? that is omeprazole, pantoprazole. So they are proton pump inhibitor. So CAMP is the mnemonic, guys, to remember what?
to remember hit and run drug. Clopidogrel, aspirin, MAO inhibitors, penicillin, prasugrel and the PPI. They are the hit and run drugs who are irreversible inhibitor. How they irreversibly inhibit? Because they are bonded with the कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है. अब गाइस एस्पिरिन हमने बोला इट इज द एंटी प्लेटलेट ड्रग. नाउ एंटी प्लेटलेट मतलब प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट कर रहा है और ये खासकर अटैचमेंट को इनहिबिट कर रहा है. ठीक है. नाउ एस्पिरिन गाइस इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस. इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस. अगर हम इसका इंडिकेशन देखें, ये हम ऑलरेडी एनसेट्स में देख चुके हैं, बट यहां पे अगर देखें इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर PSM. यू हैव द सब्जेक्ट इन थर्ड ईयर प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन. सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर PSM. P स्टैंड्स फॉर पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज. देखो गाइस, पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज में क्या होता है? देयर इज अ चांसेस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस एंड थ्रोम्बोसिस इन दी डीप आर्टरीज, मोस्टली इन मिडिल एज मेल, दोज हु आर स्मोकर्स. ठीक है. सो व्हाट हैपेंस? दे विल हैव दी थ्रोम्बोस्ड आर्टरी वॉल. सो जब वो चलेंगे दे विल हैव पेन, इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन, बीच बीच में उनको पेन होगा. दे हैव टू स्टॉप इट एंड बिकॉज ऑफ विच योर बिकॉज ऑफ दिस your aspirin is a drug of choice for peripheral vascular disease. Why? Because it is irreversible inhibitor of COX. COX को irreversibly inhibit कर देगा, इसलिए वो drug of choice है. और most common PVD is Buerger's disease. Buerger's disease. ठीक है. Okay, now S stands for it is given for ischemic stroke. प्रोफिलैक्सिस के लिए. एंड M इज ट्रीटमेंट ऑफ MI, ट्रीटमेंट एंड प्रोफिलैक्सिस बोथ. प्रोफिलैक्सिस मतलब आगे ना हो, एक बार हो गया, अब लॉन्ग टर्म प्लेटलेट एग्रीगेट ना होना चाहिए, तो हम लोग लाइफ लॉन्ग देते हैं एस्पिरिन. सो इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेनली दिस थ्री कंडीशन, दैट इज पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज, इश्केमिक स्ट्रोक एंड मायोकार्डियल इंफार्क्शन. ओके. अब हमने बोला गाइस इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस. ठीक है. ट्रीटमेंट के लिए भी देते हैं, एक्यूट अटैक के लिए भी और लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए. तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट डोज कितना होता है एक्यूट मैनेजमेंट के लिए और लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए. ठीक. सो हम लोग देखने जा रहे हैं अब डोज ऑफ एस्पिरिन इन एक्यूट एंड लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ MI और स्ट्रोक. डोज ऑफ एस्पिरिन गाइस एक एक्यूट अटैक के लिए होता है. सो अगर एक्यूट MI है एंड स्ट्रोक हुआ है, सो विल स्टार्ट मैक्सिमम हम लोग 325 mg देते हैं. आइडियली इसका डोज कितना है एस्पिरिन का? एज एंटी प्लेटलेट. सो एंटी प्लेटलेट डोज ऑफ एस्पिरिन इज 40 to 325 mg मैक्सिमम. आप लोगों को याद होगा इट इज एन एनसेड, एनाल्जेसिक है, तो उसका एनाल्जेसिक डोज कितना है? 350 650 mg. एंटी इंफ्लेमेटरी है जो 2 से 4 या 3 से 4 ग्राम पर डे दिया जाता है, हायर डोज है. बट एंटी प्लेटलेट डोज कम रहता है, मैक्सिमम 325 mg बट स्टार्ट फ्रॉम 40 mg. सो MI और स्ट्रोक के एक्यूट अटैक लिए 325 mg. अब अगर प्रोफिलैक्सिस करना है, मींस लॉन्ग टर्म में प्लेटलेट एग्रीगेट ना हो, तो हमें लॉन्ग टर्म मतलब लाइफ लॉन्ग देना पड़ेगा. सो प्रोफिलैक्सिस ऑफ MI and stroke, your aspirin is given lifelong. Aspirin lifelong given, and it is 75 mg once daily. Please remember this is very very important. So this is acute, this is prophylaxis, and both are oral. So oral aspirin, it's very important. ठीक है. एस्पिरिन देखो एज एनसेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एज एंटीप्लेटलेट भी ड्रग ऑफ चॉइस है और लाइफ लॉन्ग दिया जा रहा है. ठीक है. ओके. अब गाइस हम लोग एस्पिरिन के बारे में इतना पढ़ रहे हैं, तो हमने एनसेड, अगर आपको याद होगा लेक्चर हमारा, तो एनसेड में हमने एस्पिरिन में उसके एडवर्स इफेक्ट भी दिए थे कि भाई उसके एडवर्स इफेक्ट भी अच्छे खासे होते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म दे दिया जाए सो इट कैन कॉज GI ब्लीडिंग. सो व्हाट इज द एडवर्स इफेक्ट? इट कॉजेस ब्लीडिंग, दैट इज ब्लीडिंग हो सकती है एंड मेनली इट कॉजेस GI ब्लीडिंग. पेप्टिक अल्सर, yes or no? It can cause peptic ulcer and can lead to bleeding. Now to prevent peptic ulcer, so to prevent peptic ulcer, to prevent it,
वी हैव टू गिव ड्रग ऑफ चॉइस। अगर एनसेड के वजह से मतलब एस्पिरिन के वजह से देखो पेशेंट लॉन्ग टर्म लेगा ना, सो हो सकता है उसको हो जाए ये पेप्टिक अल्सर। सो टू प्रिवेंट इट और टू ट्रीट इट, ड्रग ऑफ चॉइस, टू treatment, the drug of choice is proton pump inhibitor. PPI is proton pump inhibitor, which is also a hit and run drug. ओमिप्रेजोल, पैंटोप्रोजोल, ओमिप्रेजोल 20 mg OD दे सकते हैं, पैंटोप्रोजोल 40 mg OD से दे सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारा ड्रग ऑफ चॉइस होगा अगर एनसेड इंड्यूस पेप्टिक अल्सर हो रहा है। बट अगर हम, आपको याद है प्रोस्टाग्लैंडिन में हमने और एक चीज पढ़ा था गाइस, दैट there is a chemical which is formed due to COX-1 and that is called prostaglandin। और स्टमक में प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, it protects the stomach, it forms a protective layer। so हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कोई ड्रग और हम लोग दे सके किसके लिए, एस्पिरिन इंड्यूस पेप्टिक अल्सर के लिए, so the most specific drug for NSAID induced ulcer is misoprostol, that is prostaglandin। NSAID induced peptic ulcer is misoprostol, ठीक है भाई। उसी की वजह से तो हो रहा है, एनसेड ने इसको क्या किया, इसी को डैमेज कर दिया प्रोस्टाग्लैंडिन को, जिसके वजह से अल्सर हो रहा है, ठीक है। दिस इज मोस्ट स्पेसिफिक, बट हु इज द ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज पीपीआई फॉर एनी कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर, ठीक है। बट दिस इज मोस्ट स्पेसिफिक, मिसोप्रोस्टॉल दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन, बट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनसेड इंड्यूस्ड अल्सर इज पीपीआई, पैंटो ओमी रैबिप्रोसोल। अंडरस्टूड, ओके। अब गाइस हमने देखा एस्पिरिन कॉजेस ब्लीडिंग, ठीक है। सो अगर भाई कोई हम लोग सर्जरी कर रहे हैं, हम लोग लाइफ सेविंग सर्जरी कर रहे हैं, एनी मतलब कोई भी सर्जरी कर रहे हैं लाइफ सेविंग, सो वी नो दैट एस्पिरिन कैन कॉज ब्लीडिंग। अगर यूज किया गया है तो व्हाट शुड वी डू, वी शुड स्टॉप दी एस्पिरिन। सो स्टॉप एस्पिरिन बिफोर, कुछ दिन पहले, कितने दिन पहले। अब गाइस एस्पिरिन किसको इनिबिट कर रहा है, COX-1। COX-1 कहां पे है, प्लेटलेट के अंदर। देखो प्लेटलेट का लाइफ स्पैन कितना होता है गाइस, 5 से 7 दिन। अगर ब्लड में हम लोग लाइफ स्पैन देखिए प्लेटलेट का, इट इज 5 to 7 days। सो इसीलिए एस्पिरिन शुड बी स्टॉप 1 week बिफोर सर्जरी, सो दैट नया प्लेटलेट 5 से 7 दिन में बनने में लगेगा, तब तक COX इनिबिट रहेगा। सो बिफोर 1 week बिफोर सर्जरी, इसकी वजह से क्या हो सकता है, नया प्लेटलेट बन जाएगा तब तक, और अगर हमने बंद भी कर दिया, एस्पिरिन बंद कर दिया 1 हफ्ते पहले, तो ब्लीडिंग भी कम हो जाएगी। अंडरस्टूड, सो दिस इज ऑल अबाउट योर एस्पिरिन, देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कहां यूज होता है, पीएसएम ड्रग ऑफ चॉइस, एडवर्स इफेक्ट रिलेटेड टू एंटीप्लेटलेट क्या होते हैं, मेनली ब्लीडिंग एंड पेप्टिक अल्सर, कैसे प्रिवेंट करना है बाय गिविंग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, और क्या प्रिकॉशन लेना है, वी शुड स्टॉप aspirin 1 week before surgery। Understood? So this is the first antiplatelet drug, that is aspirin। अब हम लोग मूव होते हैं सेकेंड एंटीप्लेटलेट ड्रग पे। तो सेकेंड एंटीप्लेटलेट ड्रग गाइस क्या है, रिक्रूटमेंट ऑफ योर प्लेटलेट इज ड्यू टू एडीपी एंड P2Y12 रिसेप्टर, उसकी एक्टिवेशन से तो हमको ब्लॉक कर देना है। सो विल ब्लॉक एडीपी और Y12 रिसेप्टर ब्लॉकर। Now how to remember this drug? Just remember, you know, after every class there is a test, that is post class test. So just remember by mnemonic post class test, PCT, ठीक है। So these are the drugs। Now P stands for guys prasugrel, C stands for, अब ऐसा क्यों लिख रहा हूं, you will understand, clopidogrel, and T stands for ticlopidine। यहां पे भी C और T है, सो क्रैनग्लोर एंड टिकाग्रिलोर। नाउ गाइस याद रखो दिस PCT, ये पूरा दे आर इरिवर्सिबल एडीपी ब्लॉकर। याद करो गाइस, हिट एंड रन ड्रग में हमने प्रासुग्रेल का भी नाम लिखा था और क्लोपिडोग्रेल का। इसका नाम क्यों नहीं लिखा था, बिकॉज इट इज नॉट यूज नाउ डेज, नॉट यूज, वेरी रेयर, ओल्डर ड्रग है, ठीक है। सो ये दोनों इरिवर्सिबल है,
सो दे आर ऑल्सो हिट एंड रन ड्रग, ठीक है. एंड दिस इज कैनग्रिलोर एंड टिकाग्रिलोर, दे आर रिवर्सिबल ब्लॉकर ऑफ एडीपी और P2Y12. We have irreversible blocker, that is PCT, prasugrel, clopidogrel and ticlopidine, and we have reversible blocker, that is cangrelor and ticagrelor, ठीक है. दे आर ग्रिलोर एंड दे आर ग्रेल, ये तो यूज ही नहीं होता टिक्लोपिडिन, ठीक है. सो ये हमारे 5 मेन ड्रग्स हैं ऑफ P2Y12 रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है. नाउ आउट ऑफ दिस 5 ड्रग गाइस, आउट ऑफ दिस 5 ड्रग्स, प्लीज रिमेंबर एस्पिरिन यू नो इज COX-1 इरिवर्सिबल इनहिबिटर, सो ये भी इरिवर्सिबल है. अब इनमें से गाइस याद रखना, इरिवर्सिबल हम लोग दे या रिवर्सिबल दे, कॉमन सेंस है, इरिवर्सिबल देंगे तो और अच्छा इफेक्ट आएगा. सो ऑलवेज रिमेंबर एस्पिरिन कैन बी एडेड. अब इनमें से ये यूज नहीं होता है. नाउ दिस ड्रग इज वेरी वेरी कॉमन ड्रग, ठीक है. सो एस्पिरिन एंड क्लॉपिडोग्रेल आर दी 12 एंटीप्लेटलेट थेरेपी, मोस्ट कॉमन 12 एंटीप्लेटलेट थेरेपी अगर हम देखें टू प्रिवेंट व्हाट इश्केमिक स्ट्रोक, टू ट्रीट MI, हम लोग ये दोनों का कॉम्बिनेशन देते हैं, दैट इज एस्पिरिन एंड क्लॉपिडोग्रेल का 12 एंटीप्लेटलेट थेरेपी, ठीक है. एंड दैट इज कॉल्ड 12 एंटीप्लेटलेट थेरेपी, 12 एंटीप्लेटलेट थेरेपी, DAPT. So DAPT is nothing but 12 antiplatelet therapy and that is aspirin and clopidogrel. Guys, डोज कितना देते हैं? अगर एक्यूट अटैक है, हमने बोला मैक्सिमम 325 mg और इसका 300 mg, ठीक है. अगर हमें मेंटेनेंस में देना है, दैट इज प्रोफिलैक्सिस, सो दोनों का 75 + 75 mg एंड दिस इज वंस अ डे, ठीक है. अंडरस्टूड, ठीक. सो डोज भी यू शुड नो, दोनों का भाई क्या क्या डोज है, एक्यूट और प्रोफिलैक्सिस या मेंटेनेंस के लिए, ठीक है. सो क्लॉपिडोग्रेल एंड एस्पिरिन, दे आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉम्बिनेशन बिकॉज दे आर इरिवर्सिबल ब्लॉकर एज वेल एज, अगर इरिवर्सिबल ब्लॉकर है, दे प्रोड्यूसेस, दोनों कंबाइन हुए तो दे विल कॉज सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, दे कॉजेस सिनर्जिस्टिक इफेक्ट. उसका मतलब क्या होता है, बिकॉज दे आर इरिवर्सिबल इनहिबिटर. एस्पिरिन किसको ब्लॉक कर रहा है, COX-1 को, और ये किसको ब्लॉक कर रहा है, क्लॉपिडोग्रेल इज मेनली ब्लॉकिंग द सेकेंड वन विच कॉजेस रिक्रूटमेंट. तो एक अटैचमेंट को ब्लॉक कर रहा है, एक रिक्रूटमेंट को, तो दोनों का इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा. तो हम लोग बोलते हैं 1 + 1 = 2, बट यहां पे 1 + 1 = 4, डबल इफेक्ट हो जाएगा, जितना एस्पिरिन भी नहीं कर सकता. दैट इज कॉल्ड सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ऑफ द 12 थेरेपी, एड ऑन थेरेपी ऑफ एस्पिरिन विद क्लॉपिडोग्रेल. ये पता होना चाहिए. अंडरस्टूड, ओके. गाइस याद रखो, इनमें से all the drugs are used orally except cangrelor, it is mainly used IV, that is intravenous. So guys, intravenous मतलब emergency. So emergency, and the emergency is percutaneous transluminal coronary angioplasty. So during when we are performing something through the lumen transluminal, so we need to have an antiplatelet drug, and that is cangrelor, which is given as a first line antiplatelet drug, and it is given IV. So PTCA is percutaneous transluminal. It is a procedure through a lumen coronary angioplasty is done in angina. So we have to give we can't give during surgery oral drug, we have to give IV. So cangrelor is only IV drug, rest all are oral. ठीक है. अब इनमें से गाइस प्लीज रिमेंबर योर prasugrel, cangrelor, ticagrelor, ठीक है. सो दैट इज PCT, ये भी PCT है, बट यहां पे P इज prasugrel, cangrelor. देखो इसका नाम लेते ही नहीं, ज्यादा यूज ही नहीं होता है. ticagrelor, they can only be used in MI,
They are mainly used in MI, but they are not contraindicated in stroke. Why? Because they increases chances of bleeding. Increases chances of bleeding. Because of some mechanism, it is causing bleeding in ischemic stroke. So हम लोग देने गए थे ischemic stroke में, but patient को bleeding होने लगी. So we cannot give PCT, that is prasugrel. We cannot give cangrelor. We cannot give ticagrelor in ischemic stroke. It is only and only given in MI. But clopidogrel can be given with aspirin, along with aspirin in PVD also, that is peripheral vascular disease, ischemic stroke and myocardial infarction. Understood? Okay. Clopidogrel is talk of the town sometime because it is very commonly used irreversible ADP blocker और P2Y12 receptor blocker, जो एस्पिरिन के साथ बहुत commonly used हो रहा है in a dose of 300 for acute and 75 mg for prophylaxis. Now this clopidogrel, guys, is metabolized by CYP2C19. Now one more thing, guys, हमने PCT drugs देखा था अभी, है ना, irreversible ADP blocker, ठीक, ADP blocker and reversible, याद रखा, इरिवर्सिबल में कौन थे? पीसीटी, प्रासुग्रेल, क्लोपिड्रोग्रेल और टिक्लोपिडीन सॉरी. रिवर्सिबल में वी है कैनग्रिलोर एंड टिकाग्रिलोर. नाउ ये तीनों गाइस दे आर इनएक्टिव ड्रग. प्लीज रिमेंबर दे आर इनएक्टिव. जब वो मेटाबोलाइज होंगे देन दे बिकम एक्टिव इन द बॉडी एंड दे विल कॉज देयर एक्शन, दैट इज प्रो ड्रग. बट ये दोनों ड्रग दे आर एक्टिव. और ठीक है, ये याद रखना है. अब क्लोपिड्रोग्रेल इज मेटाबोलाइज्ड by CYP2C19 into the active form and which can be used in MI and stroke. ठीक है गाइस, ये हम सबको पता है. इनएक्टिव फॉर्म है ये. सो इनएक्टिव से एक्टिव होने के लिए we need to have the enzyme which is CYP2C19. अब गाइस ध्यान से सुनो. अब we know PPI, that is proton pump inhibitor. Now अगर समझो एस्पिरिन को हमने क्लोपिड्रोग्रेल के साथ दिया और एस्पिरिन क्या कॉज करता है? मेनली पेप्टिक अल्सर. ठीक है, तो हमको उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग पीपीआई दे देते हैं गाइस. अब पीपीआई में एक पीपीआई है ओमीप्रेजोल. सबने नाम सुना होगा, ओमीज टैबलेट, ओमीज. सो ओमीप्रेजोल, व्हाट इट डज? इट इनहिबिट्स CYP2C19. याद रखो, देखो गाइस, क्लोपिड्रोग्रेल को एक्टिव होने के लिए हमको ये एंजाइम चाहिए. ब्लड अगर हमने ओमिप्रोजोल दे दिया है, सो इट इनहिबिट्स दिस CYP2C19. तो क्या होगा? अगर हमारा ओमिप्रोजोल दे दिया गया क्लोपिड्रोग्रेल के साथ, सो ये इनहिबिट कर देगा इसको. सो व्हाट विल हैपन? इट कैन लीड टू MI एंड स्ट्रोक. बिकॉज भाई इसका एक्शन ही नहीं हो पाएगा क्लोपिड्रोग्रेल का अगर हमने दे दिया. एस्पिरिन चलो हटा दिए, क्लोपिड्रोग्रेल के साथ ये हम दे पाएंगे क्या? नहीं, बिकॉज इट कैन लीड टू MI एंड स्ट्रोक. सो हमें ऐसा पीपीआई देना. देखो पीपीआई तो देना ही पड़ेगा बिकॉज पेशेंट विल हैव लॉन्ग टर्म दिया जाएगा ये सब, तो इट कैन कॉज पेप्टिक अल्सर. सो टू प्रिवेंट दैट वी हैव टू गिव पीपीआई. नाउ व्हिच पीपीआई शुड बी गिवन? वी शुड गिव दैट पीपीआई which will very minimally inhibit this enzyme, and that is the least enzyme inhibitor of CYP2C19 is the least inhibitor of CYP2C19 is rabeprazole and pantoprazole. But rabi is more least inhibitor. ठीक है, and the dose is 20 mg and इसका 40 mg. ठीक है, so understood. So PPI which should or which we can give along with clopidogrel is rabi or pantoprazole, not omeprazole. Please remember this. Understood this much? Okay. ठीक है, so the C drug is phosphodiesterase 3 inhibitor. PD का full form write down, phosphodiesterase inhibitor, that is 3 inhibitor. ठीक है, so phosphodiesterase 3 inhibitor, they will inhibit the metabolism of cyclic AMP, thereby we will have more of cyclic AMP जो प्लेटलेट को क्या प्रोक्रिएट होने से और इनहिबिट करे. ठीक है, अब कौन से हैं भाई हमारे PDE3 इनहिबिटर? सो हाउ टू रिमेंबर? जस्ट रिमेंबर DCP. D stands for dipyridamole. C stands for silastazole.
silastazole, and P stands for pentoxifylline. ठीक है, pentoxifylline. ठीक. So these are the three your PDE3 inhibitors, that is dipyridamole, silastazole and pentoxifylline. Now this mainly we can say दोनों या all, they all are vasodilators. ठीक है. अब उसमें ये जो ड्रग है, पहला ड्रग डायपैरिडामोल, ठीक है, it was, since it is a vasodilator, it was used previously as anti-anginal drug. vasodilation करेगा तो क्या करेगा, जो इश्केमिक एरिया है जहां पे ब्लड वेसल क्या हो गया है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, थ्रोम्बस फॉर्म हो गया, वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ाना है, सो vasodilation कर दो. सो ये हमारा डायपैरिडामोल was initially used as anti-anginal drug. ठीक है, but it causes a phenomenon guys, it causes when it was used for as anti-anginal drug, it causes coronary steal phenomenon. क्या cause कर रहा है ये, coronary steal phenomenon. इसका मतलब क्या होता है गाइस, फॉर एग्जाम्पल ये हार्ट की कोरोनरी आर्टरी है एक, ये दूसरी, ठीक है. अब ये जो कोरोनरी आर्टरी है ये पूरी थ्रोम्बोज्ड हो गई है, ठीक है, अगल बगल दोनों हैं, और ये नॉर्मल है, यहां पे ब्लड फ्लो अच्छा है. अब हमने क्या दे दिया, डायपैरिडामोल, तो ये क्या करेगा, वैसोडाइलेशन करेगा, सो और ब्लड फ्लो बढ़ाएगा. अब यहां पे ब्लड फ्लो बढ़ना चाहिए, ठीक है, बट सिंस इसके बगल में क्या है हमारा नॉन इश्केमिक ब्लड वेसल, ये डायपैरिडामोल क्या कर रहा था, इट वाज स्टीलिंग द ब्लड फ्रॉम इश्केमिक एरिया एंड प्लेसिंग देम टू नॉन इश्केमिक एरिया. समझ रहे हो, तो यहां से ब्लड उठा के वो नॉन इश्केमिक एरिया हो रहा था, मींस वो सामान क्या कर रहा है, ब्लड चुरा रहा है, जहां मिलना चाहिए ब्लड वहां नहीं मिल रहा है, बट जहां नहीं मिलना चाहिए वहां दे रहा है. सो दिस फेनोमेनन वाज कॉल्ड कोरोनरी स्टील फेनोमेनन, हेंस this drug is banned. This drug is banned. So we mainly use silastazole and pentoxifylline for any ischemic angina, yeah, we have stroke, not this, because it is banned, it causes coronary steal phenomenon. ठीक है, अब हमको पता है गाइस ये PDE3 इनहिबिटर है, तो कहां और यूज हो सकता है, इन पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज, दैट इज बर्गर्स डिसीज, एंड द मोस्ट कॉमन ड्रग इन दोनों में से, अब ये तो हटी गया समझो, इन दोनों में से द कॉमन प्रिफर्ड ड्रग इज सिलास्टाजोल, सिलास्टाजोल विच वी कैन यूज. ठीक, बट अगर पेशेंट को इमरजेंसी, एक्यूट इमरजेंसी पेन ज्यादा हो रहा है इन बर्गर्स डिसीज, सो वी कैन यूज IV pentoxifylline. याद रखो, दिस इज गिवन IV, दिस इज गिवन ओरल. So IV pentoxifylline. Understood guys? So DCP is your PDE3 inhibitor. Dipyridamole was previously used as anti-anginal but causes coronary steal phenomenon. So banned. vasodilator है, ये भी vasodilator है, ये भी vasodilator है, but silastazole does not causes this phenomenon. Hence it is used in angina as well as in Buerger's disease. It is preferred drug, but इमरजेंसी के लिए वी कैन गिव पेंटॉक्सिफाइलिन IV ड्रग. ओके, नाउ अब हम लोग एडवर्स इफेक्ट पे आ जाते हैं PDE3 इनहिबिटर के गाइस. नाउ गाइस दिस इज व्हाट, वैसोडाइलेशन. सो वैसोडाइलेशन अगर ब्लड वेसल ऑफ ब्रेन में हो गया, इट कैन कॉज हेडेक, एंड ब्लड वेसल में अगर वैसोडाइलेशन ज्यादा हो गया, सो बीपी बढ़ेगा कि घटेगा, कम होगा, सो इट कैन कॉज हाइपोटेंशन. एंड गाइस हार्ट में गाइस साइक्लिक एमपी को क्या कर रहा है, ये बढ़ा रहा है. यू नो साइक्लिक एमपी अगर ज्यादा ही हो जाएगा, सो क्या होगा, हार्ट पे लोड और बढ़ने लगेगा, हार्ट पे लोड और बढ़ने लगेगा. हेंस इट इज नॉट गिवन इन MI. ठीक है, मेनली वी शुड नॉट गिव, एक्चुअली डायपैरिडामोल है हम लोग जो नहीं देते हैं. क्यों, बिकॉज ये साइक्लिक एमपी को बढ़ा रहा है, सो और ऑक्सीजन बढ़ा रहे हैं. देखो MI का ऑलरेडी पेशेंट को अटैक है,
अब हमको क्या करना है, हार्ट पे लोड और नहीं बढ़ा रहा है, बट ये साइक्लिक एमपी अगर बढ़ गया सो इट कैन स्टिमुलेट मोर एंड मोर हार्ट, सो वी डू नॉट वांट, सो इट इज contraindicated in MI, so it can cause MI, that is heartbeat irregulation or arrhythmia. So अगर आपको याद रखना है, so just remember by 3H: headache, hypotension and heartbeat abnormality, because it increases the load on the heart which can cause MI. So it is mainly used in Buerger's disease, but this too we can use in MI also, but not this. ठीक है, ओके. नाउ गाइस हम लोग लास्ट ड्रग पे आ जाते हैं, एंड दैट इज व्हाट, इट इज GP2B3A एंटागोनिस्ट और इनहिबिटर्स. सो वी आर कमिंग ऑन द लास्ट, मींस जो मेन 4 ड्रग है उनमें लास्ट है, अभी 2 और बचे हैं, बट द फोर्थ वन इज GP2B3A inhibitor. Now how to remember this? Just remember chai. Chai means tea. Just remember tea. मैं ऐसा लिख दे रहा हूं tea. Just remember by tea. Now T stands for tyrosine. E stands for eptifibatide. And A stands for, guys, Epceximab. ठीक है. So T is your 3 drug, tirofiban, we have eptifibatide and we have Epceximab. ठीक है. Now guys, this both are mainly the peptide drugs. So guys, peptide क्या हम लोग orally दे सकते हैं? नहीं. So it is given by IV route. Now this drug is monoclonal antibody, most preferred. Also most preferred with aspirin, वैसा. Can also be given अगर रीनल फेलियर का पेशेंट है एंड मुझे इन तीनों में से कोई चालू करना है, सो आई कैन गिव दिस. एंड टी हाफ, इसका याद रखो, इज 30 मिनट्स. ठीक है. सो ये दोनों ड्रग हमारे क्या हैं गाइस? पेप्टाइड. सो हम लोग ओरल नहीं दे सकते हैं तो आईवी रूट. और ये हमारा क्या है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विच वी कैन प्रेफर इन रीनल पेशेंट, हेंस इट इज मोस्ट प्रेफर्ड विद एस्पिरिन फॉर दी कंडीशंस, है ना, अलग अलग कंडीशन में, स्ट्रोक, पीवीडी और एमआई में वी कैन यूज. ठीक है. ओके. नाउ गाइस, वन मोर थिंग आई जस्ट वांटेड टू से. अभी हमने क्या देखा इसके पहले? वी जस्ट सॉ द सी ड्रग दैट इज PDE3 इनहिबिटर्स. Now PDE3 inhibitor, that is DCP, diparidamol, and we have silastazole and we have pentoxifylline. ये 3 ड्रग हमने गाइस देखा. अब याद रखो इनकी एक और प्रॉपर्टी है, मैं बताना भूल गया. दे आर रियोलॉजिकल ड्रग्स ऑल्सो. रियोलॉजिकल ड्रग्स. नाउ व्हाट इज रियोलॉजिकल ड्रग्स गाइस? Rheological drugs, they are the drugs which will, we can say, which will decrease the viscosity of the blood. जिसके वजह से क्या होगा? वो थिन हो सकता है ब्लड, एग्रीगेट नहीं होंगे प्लेटलेट, सो ब्लड फ्लो बढ़ सकता है. ठीक है. दे आर कॉल्ड एज द रियोलॉजिकल ड्रग्स. सो दे विल इंप्रूव द फ्लो ऑफ द ब्लड. इवन दिस 3 ड्रग्स, इवन वी कैन से एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, they are what? Inhibitor of platelet aggregation. ठीक है. सो मोस्टली ऑल द एंटीप्लेटलेट ड्रग्स वी कैन से दे आर रियोलॉजिकल ड्रग्स बिकॉज दे आर रिड्यूसिंग द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, देयर बाय दे इंप्रूव द ब्लड फ्लो. ठीक है. दैट इज कॉल्ड रियोलॉजिकल एजेंट्स. ये मुझे बस बताना था आपको. ओके. सो GP2B3A, 2B3A inhibitors में we have these 2 drugs and this is the 3rd drug. So this drug is most preferred because it can be given in renal failure, but these 2 drugs are peptide, so we have to give by IV route. Guys, अब हम लोग आते हैं हमारे miscellaneous new drugs, हम लोग जो बोलते हैं, हमारा जो 5वां और 6वां मैकेनिज्म था. क्या था गाइस? So 5th drug what was guys that? Yes, we have thromboxane A2 synthase inhibitor. यू नो प्लेटलेट के अंदर क्या है? कॉक्स 1 क्या फॉर्म करता है? थ्रोम्बोक्सेन
A2, थ्रोम्बोक्सिन A2 कैसे फॉर्म होता है? थ्रू थ्रोम्बोक्सिन A2 सिंथेस इनहिबिटर, सिंथेस। अब मैंने अगर इसको इनहिबिट कर दिया तो क्या नहीं होगा? प्लेटलेट अटैच ही नहीं हो पाएंगे एंडोथेलियम ब्लड वेसल पे, ठीक है। एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 सिंथेस इनहिबिटर is a drug called as desoxybane. This drug is desoxybane, जो क्या कर रहा है? It inhibits thromboxane A2 synthase, इनहिबिटर है जिसकी वजह से क्या नहीं होगा? इट विल इनहिबिट प्लेटलेट अटैचमेंट ऑन endothelium of blood vessel. So desoxybane is thromboxane A2 synthase inhibitor. Understood? देखो नाम काफी है, ये मिसलेनियस ड्रग है, ठीक है। दे आर नॉट वेरी कॉमनली यूज्ड बट वी कैन यूज। सो डेजॉक्सीबेन, दे आर थ्रोम्बोक्सिन A2 सिंथेस इनहिबिटर, ठीक है। ओके, अब हम लोग लास्ट ड्रग पे आ जाते हैं एंड दैट इज द पार इनहिबिटर। पार का फुल फॉर्म गाइस प्रोटीएस एक्टिवेटिंग रिसेप्टर इनहिबिटर। सो पार इनहिबिटर, सो पार कहां प्रेजेंट होता था? पार वॉज ऑन प्लेटलेट, ठीक है। इट एक्टिवेट्स थ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बिन इज द वन along with GP2B3A and thrombin and fibrin, it aggregates the platelet. So ये हम लोग देंगे अगर प्रोटीएस रिसेप्टर ब्लॉकर। सो व्हेन प्रोटीएस रिसेप्टर ब्लॉकर आर गिवन, सो दे विल नॉट एक्टिवेट थ्रोम्बिन, thereby they will inhibit the aggregation of platelet. And the drugs are, we have two drugs, Vorapaxar and Atopaxar. Okay guys, so these are the PAR blockers. Now this is used with aspirin for different condition, ठीक है, but this is not used and this is used orally, ठीक है। तो हम लोग ने पांचवा ड्रग कौन सा देखा इसके पहले? थ्रोम्बोक्सिन A2 सिंथेस इनहिबिटर, दैट इज कॉल्ड डेजॉक्सीबेन। एंड लास्ट पार इनहिबिटर, दे आर वोरापैक्सर एंड एटोपैक्सर। एटोपैक्सर इज नॉट यूज्ड बिकॉज ऑफ साइड इफेक्ट्स, बट वोरापैक्सर इज यूज्ड अलोंग विद एस्पिरिन इन डिफरेंट कंडीशन ओरली, ठीक है गाइस। हमने 6 ड्रग्स देख लिए हमारे, ठीक है, और एज एंटीप्लेटलेट। अब देखो हमने एस्पिरिन का भी इंडिकेशन देखा, अलग अलग ड्रग का अलग अलग थोड़ा इंडिकेशन देखा, बट ओवरऑल एंटीप्लेटलेट का क्या यूज है वो अगर एग्जाम में आया तो यू शुड नो, ठीक है। सो इंडिकेशन ऑफ एंटीप्लेटलेट, लास्ट हमारा टॉपिक है दैट ऑफ एंटीप्लेटलेट, दैट इज इंडिकेशन ऑफ एंटीप्लेटलेट ड्रग। You know the most common antiplatelet is aspirin along with clopidogrel, ठीक है। अब how to remember? Just remember the mnemonic past MI. This is the indication. P stands for peripheral vascular disease, that is Buerger's disease, and the most common drug is aspirin with clopidogrel. देखो एस्पिरिन के साथ क्लोपिड्रोग्रेल अगर नहीं यूज किया तो यू कैन यूज अलग, सिलास्टाजोल, वी हैव वोरापैक्सर, ठीक है, वी हैव PDE3 इनहिबिटर्स हम लोग कंबाइन कर सकते हैं कहीं जहां पे यूज होता है वो ड्रग, हर जगह नहीं, ठीक। A stands for acute coronary syndrome, mainly aspirin is used and clopidogrel also. S is stroke, that is ischemic stroke, mainly aspirin. T stands for, देखो स्टेंट डाल दिया गया किसी कंडीशन में लाइक एंजियोप्लास्टी, अब थ्रोम्बस ना होने पाए, सो थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस के लिए, सो पोस्ट स्टेंट प्लेसमेंट वी नीड एंटीप्लेटलेट ड्रग, ठीक। M stands for MI and I stands for intervention. So during any procedure of angioplasty or percutaneous intervention, or we have coronary artery bypass graft, CABG, तो उस समय दे आर द इंटरवेंशन ड्यूरिंग सम हार्ट कंडीशन, एंजाइना, सो उस समय वी नीड एंटीप्लेटलेट ड्रग ताकि प्लेटलेट एग्रीगेट ना होने पाए। सो दिस इज द इंडिकेशन दैट इज पास्ट
MI, अंडरस्टूड. सो ओवरऑल इंडिकेशन ये है हमारा एंटीप्लेटलेट ड्रग का. बट हु इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ऑल दिस कंडीशन? इट इज एस्पिरिन. तो याद रखना, ड्रग ऑफ चॉइस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज एस्पिरिन. एंड एड ऑन ड्रग हम लोग कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कंडीशन. ठीक है, मोस्टली हम लोग कंबाइन करते हैं क्लोपिड्रोग्रेल को. ठीक है, ओके. सो गाइज, अगर हम लोग क्विक रिवीजन करें एंटीप्लेटलेट ड्रग का, तो ये हमारे 6 ड्रग्स हैं. COX-1 inhibitor, that is irreversible aspirin, ADP-P2, Y12 blockers, PDE3 inhibitors, which will increase cyclic AMP. Fourth is GP2B3 antagonist or inhibitor. Fifth is thromboxane A2 synthesis inhibitor, and the last is PAR inhibitor. So these are the 6 drugs of antiplatelet drug that you should know for your exam. ठीक है. Okay, so with this we are completing the second topic of the drug which affects the blood flow, that is antiplatelet drug. So we'll meet in the next lecture, that is anticoagulant. Thank you so much. मिलते हैं हमारे next lecture में. Thank you. धन्यवाद.